ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। अप्यद्यनस्त्वां स्वकृते हिता प्रभो जिहाससि स्वीत् सुहृदो न जीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसो योजिताम् हसाम्। अपि if adya today nah as tvam you swakrita self executed ihita all duties prabho, o my lord, jihasasi giving up, sweet possibly, suradaha intimate friends, anujivinaha living at the mercy of, yesham of whom, na not, cha and, anyat anyone else, bhavatah your, padambujat from the lotus feet, parayanam dependent, rajasu unto the kings, yojita engaged in, amhasam enmity. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today?
though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. Now, when all the kings are at enmity with us. Perfect. The Pandavas are most fortunate because, with all good luck, they were entirely dependent on the mercy of the Lord. In the material world, to be dependent on the mercy of someone else is utmost sign of misfortune. But in the case of our transcendental relation with the Lord, it is most fortunate case when we can live completely dependent on Him. The material disease is due to thinking of becoming independent of everything. But the cruel material nature does not allow us to become independent. The false attempt to become independent of stringent laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge. The whole material world is moving on this false attempt of becoming independent of the laws of nature. Beginning from Ravana, who wanted to prepare a direct staircase to the planets of heaven, down to the present age, they are trying to overcome the laws of nature. They are trying to now, they are trying now to approach distant planetary systems by electronic mechanical power. But the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord and become completely dependent on Him. The highest achievement of perfect civilization is to work with valor, but at the same time depend completely on the Lord. The Pandavas were the ideal executor of this standard of civilization. Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of Lord Krishna, but they were not ideal parasites of the Lord. They were all highly qualified both by personal character and by physical activities. Still, they always looked for the mercy of the Lord. But they knew that every living being is dependent by constitutional position. The perfection of life is therefore to become dependent on the will of the Lord instead of becoming falsely independent in the material world. Those who try to become falsely independent of the Lord are called anath or without any guardian, whereas those who are completely dependent on the will of the Lord are called sanath or those who have someone to protect them. Therefore, we must try to be sanath so that we can always be protected from unfavorable conditions of material existence. By deluding power of external material nature, we forget that the material condition of life is most undesirable perplexity. The Bhagavad Gita therefore directs us that after many, many births, one fortunate person becomes aware of the fact that Vasudev is all in all, and that the best way of leading one's life is to surrender unto him completely. That is the sign of a Mahatma. All the members of Pandava family were Mahatmas in household life. Maharaj Yudhishthir was the head of these Mahatmas, and Queen Kunti Devi was the mother. The lessons of Bhagavad Gita and all the Puranas, specifically the Bhagavad Purana, are therefore inevitably connected with the history of the Pandava Mahatmas. For them, the separation from the Lord was just like separation of a fish from water. Srimati Kunti Devi therefore felt such a separation like thunderbolt. And the whole prayer of the queen is to try to persuade the Lord to stay with them. After the battle of Kurukshetra, although the inimical kings were killed, their sons and grandsons were still there to deal with the Pandavas. It is not only the Pandavas who were put into the condition of enmity, but all of us are always in such a condition. And the best way of living is to become completely dependent on the will of the Lord and thereby overcome all difficulties of material existence. तो यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान से, क्योंकि भगवान जो हैं वो रथ पर आरूढ़ हो गए हैं, द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, युद्ध समाप्त हो गया है। तो कुंती महारानी कह रही है, हे भगवान कृष्ण,
यू हैव एग्जीक्यूटेड ऑल ड्यूटीज योरसेल्फ। आपने अपनी, हाँ, हाँ, आपने अपनी समस्त ड्यूटी, भगवान के तो कोई कर्तव्य नहीं है, पर फिर भी भगवान मनुष्य रूप में जब अवतरित होते हैं तो भगवान यत यत आचरति श्रेष्ठ, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए, दिखाना, आदर्श स्थापित करने के लिए, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन मैनकाइंड को गाइड करने के लिए क्या करते हैं, भगवान अपने कर्तव्य, तथा कथित कर्तव्य, भगवान के कोई कर्तव्य नहीं है, तथा कथित कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। और अब जब ये सारे कर्तव्य हो गए भगवान के, तथा कथित कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है, भगवान के लिए इस भौतिक जगत में कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान अपनी स्वेच्छा से करुणावश आते हैं संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए, और स्वेच्छा से चले जाते हैं। परंतु जब वो इस संसार में रहते हैं तो वो हमारे जैसे एक्ट करते हैं, ताकि हम सब लोग भगवान के आचरण का अनुसरण कर सकें। अनुसरण, अनुकरण नहीं, अनुसरण कर सकें, और हम अपने जीवन को भगवान के दिखाए गए मार्ग के अनुसार श्रेष्ठतम बना के वापस भगवत प्राप्ति कर सकें। तो अब ये सब कुछ कर लिया भगवान ने, तो कुंती महारानी कहती है कि आर यू लिविंग अस टुडे, क्या आप हमें आज छोड़ के चले जाएंगे? दो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर मर्सी, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं कि कुंती महारानी के ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी। इवन देव की माता से भी ज्यादा कृपा कुंती महारानी पे की भगवान ने। क्यों देव की माता से भी ज्यादा? क्योंकि देव की माता के 6 पुत्र तो गए, लेकिन उनके पास संभालने के लिए वसुदेव जी थे। पर कुंती महारानी के पास कोई नहीं था, पांडवों के पास कोई नहीं था आश्रय, और पूरा संसार उनका शत्रु बना हुआ था, पूरा संसार। आप देखिए ना पांडवों को, हस्तिनापुर में रहे तो हस्तिनापुर में द्वेष करके मारने की चेष्टा की, लाक्षागृह बनाया, लाक्षागृह में मारने की चेष्टा की, इंद्रप्रस्थ में गए तो इंद्रप्रस्थ में मारने की चेष्टा की। जब वो लाक्षागृह से निकले कुंती महारानी और सब, तो जिस जिस गांव में जा रहे हैं वहां असुर मारने की चेष्टा कर रहे हैं। फिर उसके बाद, हाँ, जब स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी के साथ स्वयंवर हुआ, तो फिर जो जितने राजा जो हारा हुआ महसूस कर रहे थे वो मारने की चेष्टा कर रहे हैं। स्वयंवर करके लाए, उसके बाद, हाँ, हस्तिनापुर में स्वागत कैसा हुआ? कटाक्ष से, द्वेष से स्वागत हो गया। उसके बाद फिर इंद्रप्रस्थ, उन्होंने जो अपना अधिकार है उसको त्याग दिया, तो इंद्रप्रस्थ में गए। इंद्रप्रस्थ में भी उनको चैन से जीने नहीं दिया, वहां पर भी फिर कपट करके शकुनी ने और दुर्योधन ने उनको बुलाया और फिर कपट करके पास से फिकवाए। फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और इस अज्ञातवास और वनवास में कीचक कभी पीछे पड़ रहा है, कभी सिंधुराज जयद्रथ पीछे पड़ रहा है। हाँ, और कुंती महारानी के साथ जब हम वो जा भी रहे थे तब हिडिंब करके राक्षस पीछे पड़ गया। तो क्षण क्षण पांडवों का अस्तित्व खतरे में था। जहां जा रहे हैं, विराट में गए तो कीचक पीछे पड़ गया, फिर विराट के महाराज युधिष्ठिर महाराज को ऐसे जैसे कोई चपरासी नौकर जैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनको तो पता नहीं ऑफ कोर्स। तो जिस स्थान पे भी जा रहे हैं पांडव, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान का कार्य करने के लिए इस संसार में घूम रहे हैं, और वहां पर उनको उनका अस्तित्व ही मिटाने की चेष्टा हो रही है। महाभारत के युद्ध में देखिए ना, भीष्मदेव स्वयं पांडवों का अस्तित्व मिटाने की चेष्टा कर रहे हैं। द्रोणाचार्य जिन गुरुओं से सीखा, वो गुरु ही द्रोणाचार्य, लीला के अंतर्गत बलराम जी भी अगेंस्ट हैं। ये पूरा संसार अगेंस्ट है पांडवों के, और उन सब के बीच में केवल एकमात्र आश्रय है पांडवों का।
कृष्ण। कृष्ण केवल एकमात्र आश्रय तत्व है, वो है कृष्ण तत्व। पांडव कृष्ण के अलावा किसी को जानते नहीं। तो अब कुंती महारानी कह रही है क्या, हम टोटली आप पे डिपेंडेंट है कृष्ण, हमारे को कोई और प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। और अब जब ये युद्ध समाप्त हो गया है तो इतने सारे लोग जो हमारे शत्रु हैं, शत्रु हैं, तो वो सब हमारे, हाँ, शत्रु हैं तो शत्रुता निभाएंगे जिनके परिवारों का हमने वध किया। इतने सारे शत्रुओं के बीच में आप हमें अकेला छोड़कर चले जाएंगे कृष्ण, तो ये कुंती महारानी कह रही। शिल प्रपात कह रहे हैं कि द पांडवास आर मोस्ट फॉर्चुनेट बिकॉज विथ ऑल गुड लक दे वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड। उनके पास कृष्ण के अलावा और कोई आश्रय नहीं था। इन द मटेरियल वर्ल्ड, अगर हम देखें भौतिक जगत में, टू बी डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ समवन एल्स इज द अटमोस्ट साइन ऑफ मिसफॉर्चून। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर हम किसी पे आश्रित हो, कोई बीमार हो किसी पे आश्रित हो, कोई पैसे के लिए किसी पे आश्रित हो, कोई अपने भोजन के लिए किसी पे आश्रित हो, तो कितना सबसे अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है कि जब हम किसी पे आश्रित हो जाते हैं। बट इन द केस ऑफ अवर ट्रांसेंडेंटल रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, इट इज मोस्ट फॉर्चुनेट केस व्हेन वी कैन लिव कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम। जब हम टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, कृष्ण पे हम आश्रय होते हैं। तो द मटेरियल डिजीज जो मटेरियल बीमारी है, वो यही है कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग है, हमको किसी से किसी की परवाह नहीं है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम अपना सब कुछ कर लेंगे। और भगवान की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट द क्रूएल मटेरियल नेचर डज नॉट अलाउ अस टू बिकम इंडिपेंडेंट, पर क्रूएल मटेरियल नेचर हमको अलाउ नहीं करता। The false attempt to become independent of the stringent laws of nature is known as material advancement of experimental knowledge। और ये संसार जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इस संसार में एक्सपेरिमेंटल मनोधर्म कर करके सब, हाँ, अपने आप को सोचते हैं कि हम एडवांस्ड हैं, या तो मनोधर्म से या एक्सपेरिमेंट से। मटेरियलिज्म, यही मटेरियलिज्म है। हाँ, मटेरियलिज्म, मनोधर्म, स्पेक्यूलेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बेस्ड ऑन दिस मटेरियलिज्म। और सब लोग सोचते हैं एडवांस है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बद है। आप अब सोचिए ना, कोई व्यक्ति कितना एडवांस करेगा, कितना इंडिपेंडेंट होगा, उसको वापस वो छोड़ के आना है और डिपेंडेंट होना है, तो वो रास्ता उसको वापस ट्रेवल करना पड़ेगा उल्टा, भगवान पे डिपेंडेंट होने के लिए। द होल मटेरियल वर्ल्ड इज मूविंग ऑन दिस फॉल्स अटेम्प्ट ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉज ऑफ नेचर। पूरा संसार यही चाहता है कि हम प्रकृति के नियमों के परे जाएं। Beginning from Ravana, who wanted to prepare a direct staircase to the planet of heaven, down to the present age, they are trying to overcome the laws of nature। सब प्रकृति के नियमों को पार पाना चाहते हैं। They are trying to now approach distant planetary systems by electronic mechanical power। वे परग्रहों की यात्रा करना चाहते हैं जबरदस्ती, यह आसुरिक टेंडेंसी है। But the highest goal of human civilization is to work hard under the guidance of the Lord। बट जो हाईएस्ट गोल है सिविलाइजेशन का, वो क्या है? बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है भगवान के निर्देशन में, एंड बीकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड। पूरा मेहनत, 3 पॉइंट बोल रहे हैं। डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए? भगवान की। कार्य क्या करना चाहिए? बहुत मेहनत का। और रिजल्ट भगवान पे डिपेंडेंट है। द पांडवास आर आइडियल एग्जीक्यूटर्स ऑफ दिस स्टैंडर्ड ऑफ सिविलाइजेशन। और पांडव जो है वो यही उसके हाई स्टैंडर्ड थे। Undoubtedly, they were completely dependent on the goodwill of Lord Krishna, but they were not ideal parasites of the Lord। वो पैरासाइट होते हैं ना, जो दूसरे पे आश्रित होके पड़े हैं, भगवान जो करेंगे सो करेंगे, और हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे। भगवान हमारे नौकर नहीं है,
हम भगवान के नौकर हैं। हम सब कुछ करेंगे भगवान के लिए, रिजल्ट के लिए भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे, और डायरेक्शन भी भगवान से लेंगे। हम सब कुछ करेंगे भगवान के लिए, मेहनत करेंगे, भगवान भगवान को सुबह उठाएंगे, उनको स्नान कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनकी कथा करेंगे, उनके लिए भोग बनाएंगे, उनके लिए फूल लाएंगे, उनके लिए फल लाएंगे, उनके लिए सब कुछ करेंगे। जो वॉट एवर इट टेक्स वी विल डू दैट फॉर द लॉर्ड। पैरासाइट बोल के हम पड़े नहीं रहेंगे। पैरासाइट होता है ना जो दूसरों पे पड़ जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। अरे मेहनत करो भगवान के लिए, सेवा करो भगवान की। कई लोग अलग अलग लेवल में ग्रस्त हो जाते हैं। कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मेरे साथ मैं मेरा मैं मेरा जो भी है। अभी आगे बढ़ जाओ और कुछ एक्ट करो भगवान के लिए। कुछ तो एक्ट करो भगवान के लिए। नवधा भक्ति कर सकते हो तो नवधा भक्ति करो, नवधा भक्ति नहीं कर सकते तो कर्म करके फल भगवान को अर्पित करो, कर्म योग करो। वो भी नहीं कर सकते तो जो भी कुछ करते हो आप उसको भगवान को अर्पित करते हुए करो, लेकिन कुछ करो तो सही। खाली ठाले बैठने से क्या अचीव होता है संसार में? कुछ अचीव नहीं होता है ठाला बैठने से। भगवान ने इतनी एनर्जी दी, इतनी शक्ति दी, इतनी बुद्धि दी, इतना विवेक दिया, इस सब का कहाँ उपयोग होगा? भगवान की सेवा में उपयोग होगा ना। तो भगवान की सेवा में इन सबका उपयोग करना है। शरीर में बल दिया, और जो चीज को हम भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करेंगे भगवान वो हमसे छीन लेंगे। अगर हम शरीर को नहीं यूज करेंगे तो भगवान हमारे शरीर की शक्ति को छीन लेंगे। वाणी को नहीं यूज करेंगे भगवान की सेवा में तो भगवान हमारी वाणी को छीन लेंगे। हम्म। अगर हम बुद्धि को नहीं यूज करेंगे तो भगवान हमारी बुद्धि को छीन लेंगे। हम अपने मन को नहीं यूज करेंगे तो भगवान हमारे मन को पागल बना देंगे। जो भी चीज हम भगवान की सेवा में नहीं यूज करेंगे, प्रकृति हमसे छीन लेगी। बहुत सरल है, छीना ही जाना है। कितना ही कोई अरबपति हो, कोई करोड़पति हो। सोचिए आज इस जन्म में कोई एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति, मान लीजिए, बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट करता है, परंतु उसने साम्राज्य क्रिएट किया परंतु स्वयं भोक्ता बन गया, भगवान की सेवा में नहीं यूज कर रहा है, तो काल के रूप में भगवान उससे सब कुछ छीन लेंगे, आएंगे। और तब उसको कितना दर्द होगा। और वो मरेगा कैसे? कि मैं करोड़पति हूं, और अगले जन्म में मरेगा भूत, क्योंकि इतना करोड़ का साम्राज्य था और कर्म वैसे खराब हो गए। तो अगले जन्म में क्या बनेगा? भूत। और जब भूत बन गया तो वो भूत बन के मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। और फिर जन्म भी लेगा तो उसके मन में यही रहेगा, मैं करोड़पति हूँ। उसको समझ में नहीं आएगा कि आप गरीब के घर में जन्म लिए। उसका एटीट्यूड करोड़पति वाला रहेगा। तो ये जो टेंडेंसी है, ये क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉर्ड हम रहना चाहते हैं। हम सब कुछ भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते। हम सब अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, और सबको अपनी सेवा में, सब अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। जो गुरु होते हैं और जो आचार्य होते हैं वो क्या करते हैं? हर एक व्यक्ति को उसके स्वभाव के हिसाब से हम उसको सेवा देते हैं कि चलो आप ये सेवा करो। लेकिन हम सोचते हैं अरे हम ये सेवा क्यों करेंगे, मेरे हिसाब की सेवा करेंगे हम क्यों करेंगे कोई सेवा? हमको नहीं करनी कोई सेवा। फिर हम सड़ते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, सड़ते रहेंगे, और फिर हमारा अगला जन्म बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। और इस संसार में कोई भी हो, चाहे कोई कर्मी हो, चाहे कोई विकर्मी हो, चाहे विधर्मी हो, कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो भगवान की सेवा में होगा, बहुत सभ्य समाज का सभ्य मनुष्य होगा, बहुत अच्छे ब्राह्मण होंगे, सब कुछ होगा, पूजा पाठ वेद पठन आदि सब कुछ करते हैं, लेकिन यदि वे भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तब उनको क्या होगा? अपने परिवार को छोड़ के मृत्यु को प्राप्त करना पड़ेगा, और भगवत प्राप्ति तो हुई नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर पुनः वो कष्ट लेके पुनः वो परिवार से बिछड़ के वापस आना। तो ये जो विपरीत सिविलाइजेशन है, जो भी सिविलाइजेशन आचार्य को फॉलो नहीं करती है,
वो सिविलाइजेशन विपरीत सिविलाइजेशन, और वो इस संसार में महान कष्ट, क्योंकि इस संसार